Mm. Is it clear now? Okay, good. So, yep, continue. Hopefully, we'll not have any issue today. Still. Okay. So, yesterday we have seen how to use a VLOOKUP, right? A different type of VLOOKUP, as in a regular VLOOKUP, जहाँ पे आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है, सोर्स टेबल, कॉमन टेबल और लुकअप वैल्यू, राइट? एंड देन all the values are populated here. Okay. एंड इसके बाद सेकेंड ऑप्शन था जहाँ पे आप लोगों ने ऑप्शनल पैरामीटर जो था लाइक लुकअप रेंज लुकअप के बारे में, दिस ऑप्शनल पैरामीटर यू हैव सीन, राइट? इसमें ट्रू एंड फॉल्स आते हैं एंड देन व्हेन टू यूज विच पैरामीटर. ओके, range lookup, when to use true, when to use false. If everything is working, no need to use because it is by default true. आपको if it is not working as required, then you can use false. Okay, और zero, दोनों में से एक यूज. ये क्या करता है? This creates a exact match for the lookup value. Okay, clear? Exact match create करता है, as in it works on an exact match. यहाँ तक सबको पता है? Hope everybody is okay with this and no one is facing any issue. Good. So next आज हम देखने वाले हैं इसका एक second type. For example, I give you a this table 3. यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सपोज आई वांट दिस बोनस. ओके, कल आपने एम्प्लॉय आईडी से बोनस फाइंड आउट किया है, राइट? बट आई वांट टू यूज अ टेबल 3 एज सोर्स टेबल. वे जनरली कंपनीज में यू डोंट सी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर बोनस, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉय आईडी इज E104 तो उनका बोनस 3.5 होगा, ऐसा नहीं रहता, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, so here we have a experience and bonus. So based on the experience, आपको जितना experience है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे bonus लिखा गया है. Clear? So now requirement is I have to use table 3 and कल आपने ये bonus लिखा है, now this I want to fill it. Okay, यहाँ पे जो bonus column है. So चलो कौन बताएगा how to do it? Yes, पहले तो कौन सा lookup function यूज करना पड़ेगा? कौन सा lookup function? VLOOKUP. So we are filling values like this, right? Values ऐसे fill कर रहे हो आप. So this becomes a VLOOKUP, right? ये क्या है? Vertically. Vertical, column wise. So good. Then one more question. पहले तो lookup value क्या आएगा? What is a lookup value? Experience. Table. Okay, table 3 देखिए और ये example 3 देखिए. क्या आएगा? Zero. Zero. Lookup value कौन सा आएगा? Experience wise. Zero wise. Okay, experience. तो यहाँ पे experience है क्या? नहीं है. Then how will you match? Yes, hope you are able to understand. यहाँ experience है, I agreed, but यहाँ पे भी होना चाहिए ना experience. By using VLOOKUP formula. So पहले एक काम कर दीजिए, यहाँ पे experience लेके ये, then you can use this information to create another table. तो let's bring this experience यहाँ पे कैसे लेके आते हैं? आप table 1 रेफर कीजिए, देखिए इसमें पूरा experience है. तो I will start with here, formulas, insert function, VLOOKUP, right? Press OK. Okay. Then what is the lookup value? Lookup value is employee ID. Then table array, source table यहाँ से, right? ये आएगा table 1 and index is 5. You can see it here, RI. Okay.
प्रेस ओके। ये आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा, एंड इफ यू डबल क्लिक यू आर गेटिंग अ एक्सपीरियंस। क्लियर? नाउ यू कैन यूज दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस यूज करके आप और ये टेबल यूज करके आप बोनस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? बट ओनली इशू इज, सी बोनस एक्सपीरियंस का है 4 है यहाँ पे, 4 years. डज दिस हैव 4 years? डू यू थिंक, लेट्स से बोनस 6 है यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे 6 है क्या? नहीं है। 8 भी है यहाँ पे, देखिए 8 9 है, यहाँ पे है क्या 8 9? देन will it work? No. Okay. Yes, what about others? I got one answer as no. How many of you think yes? कितने लोगों को लगता है वर्क होगा? कितने लोग yes online? You can show It will thumbs up. work. Hmm? It will work by Okay. using range. Okay. Okay. So let's see वर्क होता है कि नहीं, करके देखते हैं, है ना? Why to think so much? आता है तो करके देखिए। इफ इट वर्क्स वेल एंड गुड, है नहीं वर्क होता है तो देखते हैं क्या चेंज होगा, बट जितना आता है उतना करते हैं। चलो, ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, राइट? प्रेस ओके, हो गया। देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एक्सपीरियंस, राइट? तो सिलेक्ट दिस, देन टेबल अरे क्या आएगा? ये, राइट? होप यू नो बाय दिस टाइम, अभी 3 दिन हो गया, इतना टाइम। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 2। सो आई एम नॉट गिविंग दिस, कीपिंग, बिकॉज आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। प्रेस ओके, क्लियर, एंड देन डबल क्लिक। यस, एनीथिंग चेंज्ड? यस, एक क्या लगता है? फर्स्ट थिंग इज, आपको डीबग करना है तो क्लिक कीजिए यहाँ पे NA आ रहा है और फॉर्मूला के ऊपर क्लिक कीजिए, तो देखिए ये लुकअप वैल्यू है आपका, बराबर है। टेबल अरे पे जाइए, क्लिक, टेबल अरे, टेबल अरे, ये तो नीचे आ गया टेबल है, देखिए रेड कलर यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया था ना आपने, और ये तो नीचे आ रहा है। यस, दिस हैपन्स, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ओके, एक्सेल का, बिकॉज एक्सेल हमेशा वैल्यू फिल करता है, जैसे आप डबल क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली फिल करता है ना, तो वैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर रहा है। एक ऑप्शन हो सकता है, पहले तो हमने यहाँ पे क्या गलती किया है, कैन एनीवन क्विकली टेल मी? एक चीज यहाँ पे स्टिल मिसिंग है जो हमने टेबल में कन्वर्ट नहीं है सर। यस, होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये सोर्स टेबल टेबल में कन्वर्ट नहीं है। इफ आई क्लिक, ये देखिए आ रहा है कि यहाँ पे, तो पहले आप इसे टेबल कन्वर्ट कीजिए। ओके, सिलेक्ट द डेटा, इंसर्ट टेबल, ठीक है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अभी आप वापस ट्राई कीजिए, इफ वर्क्स ऑल एंड गुड। ओके, इन फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एक्सपीरियंस। टेबल अरे क्या आएगा? नाउ द टेबल, यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया, देख लीजिए एक बार वापस। आई एम सिलेक्टिंग ओनली दिस मच एरिया, ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, देन दिस, प्रेस 2, ओके, एंड डबल क्लिक। वर्क तो हो रहा है, एक बार लॉजिक चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 के लिए ये दिखा रहा है 4 साल का एक्सपीरियंस ना, तो नाउ लॉजिकली चेक कीजिए, अभी 3 कहाँ इन दोनों के बीच आएगा? 5 और 2 के बीच, राइट? लेट्स से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कितना बोनस मिलना चाहिए? 4। लेट्स से 5 साल का है तो कितना? 12। बट 3 साल के लिए कितना मिलना चाहिए? आइडियली 4 ना। क्यों? क्योंकि वो 5 से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो 5 से कम जो भी है वो 4 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो 2 से ज्यादा है, तो दैट इज इन बिटवीन दिस। तो लॉजिकली वी लुकअप वर्क होता है। ऐसा नहीं कि हर बार हमेशा आपको मैच फाइंड आउट करना पड़ेगा एग्जैक्ट,
उस वैल्यू के बीच कुछ लॉजिकल बनता है कंडीशन वगैरह, तो उसके बीच पे ये VLOOKUP भी वर्क होता है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो वन क्या क्या देखा? पहले हमने सिंपल VLOOKUP देखा विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर। देन यूजिंग ऑप्शनल पैरामीटर हमने देखी, राइट? मतलब ट्रू एंड फॉल्स कब एक्टिवेट करना है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज लॉजिकल VLOOKUP। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन? सो ये शुड नॉट बी एग्जैक्ट मैच, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार एग्जैक्ट मैच मिलेगा आपको। आप अप्रोक्सीमेट मैच जो फाइनल पैरामीटर है उसका यूज करके लॉजिकल VLOOKUP भी वर्क होता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस, नो? Yes, sir. Sir. ओके, गुड। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज वी हैव वन मोर एग्जांपल। सपोज अभी तक जो हम देख रहे थे VLOOKUP, हर बार हमने एग्जांपल क्या लिया है, ऊपर के ये टेबल, नहीं तो ये टेबल, नहीं तो ये टेबल, राइट? और कंसोलिडेट कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे, राइट? ये नीचे के टेबल में। ओके, बट व्हाट इफ लेट्स से मुझे डेटा ये यहाँ लेके आना है, ये कॉलम दिख रहा है बोनस का, इसमें मुझे बोनस फिल करना है, बट इस बार मेरा सोर्स टेबल अलग है। यहाँ पे है, देखिए नीचे दिख रहा है VLOOKUP टेबल 2, एक नया शीट है, इस शीट के अंदर मेरा ये डेटा है, यहाँ पे देखिए। तो एक शीट से उठा के दूसरे शीट पे मुझे लेके आना। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ दिस इज वेयर वी आर यूजिंग हमारा जो एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर, तो उसी के पास हम जा रहे हैं अभी। ओके, सो अगेन विल इट वर्क, विल नॉट वर्क, क्या लगता है आप लोगों को? और वर्क होने के लिए क्या चेंज वर्क करना करेगा। पड़ेगा? It मतलब will कुछ work. फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा सो दैट इट विल वर्क। यस, It will work. We look only. ओके ओके, लेट्स सी। जो आपको आता है वही कीजिए, देन विल गो अहेड। ओके, पहले तो मेक श्योर आपने ये टेबल वगैरह फॉर्मेट किया है। ओके, और एल्स वो अननेसेसरी एरर भी आ जाएगा। तो इंसर्ट टेबल, ओके, प्रेस ओके, हो गया, इसे फॉर्मेट किया हमने। गुड, एंड कम हियर, सिलेक्ट दिस सेल, go to formulas, insert function and VLOOKUP. Sorry, yes, VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू कॉमन कॉलम, क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी, राइट? Right. देखा है ना, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है इसके अंदर। इफ यू वांट लेट मी शो यू। देखिए इसमें क्या कॉमन है इस टेबल 2 में, और हमारे टेबल में क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी इज लुकअप वैल्यू हो जाए, राइट? रेंज मतलब कॉलम इंडेक्स 1 and 2। ओके, so we'll do it. Select this, formulas, insert function, VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी। सिलेक्ट कीजिए। नाउ टेबल अरे, क्या आएगा टेबल अरे? टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल, सोर्स टेबल जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? कॉन्टैक्ट्स है। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं इसे? क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन गो टू दिस एंड सिलेक्ट द टेबल। शीट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से आके वो पूरा सोर्स जो भी था आप सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए यहाँ से, राइट? देन कॉलम इंडेक्स नंबर इज 2, प्रेस ओके। देखिए डबल क्लिक, आ गया। ये क्यों परसेंटेज में नहीं आ रहा है? परसेंटेज में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ तो परसेंटेज है, देखिए फॉर्मेटिंग नहीं किया है, दैट्स व्हाई। होप यू अंडरस्टैंड। क्लिक हियर एंड होम, फॉर्मेट कीजिए। इधर शॉर्टकट यहाँ से कीजिए, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, ये देखिए। Right. ओके, हाँ, 2 डेसिमल देना है तो 2 डेसिमल।
Okay, like this. Clear? Understood everyone? Good. समझ में आया? So you don't have to change anything. आपको जो पता है, लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल अरे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, वही यूज करना है. नो नीड टू चेंज एनी पैरामीटर. ओके, गुड. ऑनलाइन आई कैन सी ओनली 2 people responding. What about others? Yes, what about others? Aditya. Okay, if you are joined for the first time, because I see a lot of people added afterward, so ये सारे recorded lectures available है. ग्रुप जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है, प्लीज चेक द ग्रुप डिस्क्रिप्शन. उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सो यू कैन फॉलो दैट. देन उसके बाद ये लेक्चर आप वापस देख सकते हैं. इसका भी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. ओके, आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग एज वेल. सो इफ यू फाइंड any difficulty, please reach out to me or we'll connect separately. Okay, those who are joining today or yesterday, okay, those who have joined yesterday or joining today, तो उनके लिए ये है. What about other, बाकी लोगों को जो रेगुलर है उन्हें समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. okay, good. The next option is bonus. ये बोनस कॉलम में हमें फिल करना है. ओके, क्या फिल करना है? अगेन दिस टाइम मेरा जो सोर्स डेटा है और डेटा सोर्स और जहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल होती है, ये अवेलेबल है इन डिफरेंट फाइल. अभी तक सब कुछ हम एक फाइल में काम कर रहे थे. अभी दूसरा फाइल ओपन करता हूँ. लेट्स सी. ये देखिए, गो हियर. ओके, ये दूसरा फाइल है, देखिए है ना. एक किसी और फोल्डर में किसी और जगह पे ये VLOOKUP table 2 करके फाइल है. डबल क्लिक कर दो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये देखिए. ओके, ये नया फाइल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो फाइल का नाम. ओके, सो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा? हर बार की तरह फॉर्मेट कीजिए टेबल, इसे इंसर्ट टेबल, प्रेस ओके. ये वाइट कलर आ रहा है तो आपको यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो. होम में जाके ये देखिए, यहाँ पे कलर चेंज होता है. ओके, किसी का माइक शुरू है. ओके, हो गया. सो दिस इज अ टेबल. आपने फॉर्मेट कर लिया. हेलो सर. हाँ सर वो व्हाइट कलर का कोई परमानेंट फिक्स नहीं होता क्या? वो हर बार चेंज हो जाता है. नहीं, वो आप द मोमेंट यू क्लिक, मतलब पहले आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया होगा इसीलिए वो वैसा होता है. उसके लिए दैट इज नॉट, मतलब उसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट यू कैन सेट इट मैन्युअली. आप नहीं तो ये टेबल डिजाइन में जाके कलर चेंज करके देख लीजिए, इसमें से कुछ सपोर्ट करता है क्या. ओके, ओके सर. ठीक है, हो गया. नाउ आई नीड टू फिल दैट हियर. तो कॉमन कॉलम क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, दोनों के बीच क्या है? देखिए, एम्प्लॉय आईडी है, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, राइट, एंड आई नीड बोनस. तो सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, VLOOKUP, प्रेस ओके. ओके, लुकअप वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू इज दिस E101. दोनों में कॉमन है. टेबल अरे क्या आएगा इस बार? यस, व्हाट इज द टेबल अरे? टेबल अरे यू क्लिक एंड एक बार आपको टेबल जहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाइए. देखिए, 2 फाइल दिख रहा है, राइट. ये आपका फाइल है और ये यहाँ पे सोर्स टेबल अवेलेबल है. तो आई विल सिलेक्ट दिस एंड गो इनसाइड. ये देखिए, क्लिक क्लिक, देन सिलेक्ट द फाइल. यहाँ से डेटा आप सिलेक्ट करें. हो गया, सिलेक्ट कर दिया. देन ओपन दिस. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 2, राइट. प्रेस ओके एंड डबल क्लिक. हो गया. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर. So this is how you combine different files.
होप यू अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था, राइट? एक बैंक है, आपके अंडर 10 ब्रांच है, हर एक ब्रांच का 10 फाइल्स है, राइट? और आपका रिक्वायरमेंट ये था कि आपको पूरा डेटा कंबाइन करना था एक जगह पे, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस। कॉपी पेस्ट नहीं वर्क होता था बिकॉज वैल्यूज रोज कम ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डेटा टू कंबाइन द फाइल। ओके, अलग अलग डेटा आप यूज करके फाइल्स कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Good. So this is how you can combine the file. So just to revise, we started with VLOOKUP. VLOOKUP में सबसे basic VLOOKUP देखा जहाँ पे आप lookup value, table array and column index number use करते हैं, right? Then next phase में, in the next phase you used how to use a optional parameter. मतलब आपने सीखा how to use a optional parameter. True and false, what is exact match, what is approximate match. Okay? फिर उसके बाद आपने देखा कि हाउ यू कैन यूज अ लॉजिकल VLOOKUP। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 1-to-1 मैच चाहिए, इन बिटवीन वो नंबर आ गया तो भी चलता है, दैट्स अ लॉजिकल VLOOKUP। देन लुकअप वैल्यू अक्रॉस द शीट, दो शीट के बीच लुकअप वैल्यू आपने देखा, राइट? एंड दो फाइल के बीच, अलग अलग दो फाइल है, उसे कंबाइन कैसे करना। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द VLOOKUP और उसके सारे टाइप्स। ओके, now let's see what is next in the pipeline. So suppose एक और एक एग्जांपल है हमारे पास, बस दिस बार थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स से ये मेरा टेबल है, इस बार है, देखिए टेबल 1 दिख रहा है, ओके? एंड इन दिस टेबल यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी है, बट ये एम्प्लॉय आईडी ऐसे है, राइट? इन द रो फॉर्मेट, सारा डेजिग्नेशन भी रो में है, देखिए ऐसे, सैलरी भी रो में है, राइट? एक्सपीरियंस भी वही है, ओके? देखिए आप देख सकते हो। एंड द रिक्वायरमेंट इज, नीचे देखिए एक एग्जांपल 1 है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? एम्प्लॉय आईडी लिखा है बट आपको सैलरी चाहिए, राइट? सैलरी फिल करना है, दिख रहा है, राइट? सो नाउ आई नीड टू फिल सैलरी लाइक दिस, so this is nothing but a horizontal line, okay? H lookup, so यहाँ पे VLOOKUP होगा क्या? VLOOKUP is vertical, ऐसे फिल करते थे हम, अभी आएगा H lookup, okay? So I will use the same, select the cell, formulas, insert function, but इस बार आपको H lookup यूज करना, ओके? आपने सर्च किया H lookup, प्रेस ओके। देखिए यहाँ पे अगेन सेम लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे है, ओनली थिंग इज यहाँ पे कॉलम की जगह रो लिखा है, वहां पे COL लिखा था, यहाँ पे ROW, रो इंडेक्स नंबर है, ओके? बाकी रेंज लुकअप भी वही ऑप्शन है। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू कॉमन, क्या कॉमन है इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी, राइट? तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, देन टेबल अरे क्या आएगा? व्हाट इज अ टेबल अरे? Table 1. टेबल 1, ये देखिए यहाँ से ये जो डेटा है, आई हैव सिलेक्टेड दैट, दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है डॉटेड ग्रीन लाइन, Yes. ओके? देन रो इंडेक्स नंबर, नाउ दिस इज अ रो इंडेक्स नंबर। नाउ सेम जैसे हम दो कॉलम के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे दो रो के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये जो कॉमन रो है, कॉमन रो है एम्प्लॉय आईडी, इसका नंबर 1 आएगा हमेशा, राइट? फिर नेम, नेम का रो नंबर आएगा 2, डेजिग्नेशन का रो नंबर आएगा 3, सैलरी का रो नंबर आएगा 4, एक्सपीरियंस का रो नंबर आएगा 5। तो हमें क्या चाहिए? सैलरी, तो सैलरी का रो नंबर क्या है? 4, तो आई विल यूज अ 4 here, ओके? आंसर आ रहा है आपको? प्रेस ओके। क्लियर?
देन यू क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फिल। सेम चीज है जो वी लुकअप में आपने किया है, वही चीज यहाँ पे आपको करना है, नथिंग एल्स। ओके, सिमिलरली क्लिक हियर, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन। अगेन कौन सा आना चाहिए? एच लुकअप, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फिल करना है। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, राइट। टेबल अरे क्या आएगा? अगेन सेम हॉरिजॉन्टल टेबल, ये जो आपने लिखा है। ओके, देन रो इंडेक्स नंबर क्या आएगा? रो इंडेक्स नंबर, 5. यस, व्हाट इज द रो इंडेक्स नंबर? 3 एम्प्लॉय आईडी का 1 आएगा, नेम का 2 आएगा। आएगा, डेजिग्नेशन का 3 आएगा, राइट, सैलरी का 4 आएगा, एंड एक्सपीरियंस का 5 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए डेजिग्नेशन कितना है, डेजिग्नेशन का रो नंबर 3, 3. right? So I will use a 3 here. Okay, we'll click, sorry, click. Okay, this is how you can match. Okay, अंडरस्टूड। तो बाकी सारी चीजें वी लुकअप में जो आपने सीखा है, लॉजिकल वी लुकअप, अक्रॉस द शीट, दो शीट के बीच, दो फाइल के बीच, सिमिलरली एच लुकअप भी वर्क हो जाए। क्लियर? अंडरस्टूड हेलो सर। एवरीवन? Yes, Yes. sir. नो? हाँ बोलिए। अभी तो ये सिर्फ 5 ही रो थे, इसलिए हमने काउंट कर दिया। अगर ज्यादा हुए 50, 60, 80, 90, 100 हुए तो Yes. So, if you have more rows, then how will you? Yes, question. हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा रो हुए तो हम कैसे नंबर ढूंढेंगे कि गिनना तो इतना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत टाइम जाएगा उसमें। Yes. Very good question. This is what I was waiting for. मतलब आज का असाइनमेंट करने के बाद आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था, बट गुड दैट यू आस्क्ड अभी। बिल्कुल। Whatever. Okay. Let me show you. Okay, I don't know whether आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बट let me use VLOOKUP and explain you कि क्वेश्चन क्या था. Okay. चलो, सपोज ओके, डेजिग्नेशन मुझे फिल करना है, राइट। नॉर्मल VLOOKUP है, आपने VLOOKUP किया, डेजिग्नेशन सोर्स टेबल लिखा, बट व्हाट इफ ये जो टेबल है, इस टेबल में बहुत ज़्यादा कॉलम है, 50, 60 ऐसे कॉलम है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट कॉलम इंडेक्स नंबर? अभी क्या करते थे हम? मैन्युअली काउंट करते थे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। व्हाट इफ देयर आर मोर कॉलम्स, देन कैसे करेंगे? ओके, यस, ओके। सो यू कैन यूज, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड मैच फंक्शन एज वेल, जो मैच करता है। बट उससे भी एक आसान तरीका है, वाई टू यूज फॉर्मूला एवरी टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज फोकस इट हियर। ओके, लेट्स से आपको डेजिग्नेशन चाहिए और उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तो सेलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, जो आपको पता है वही कीजिए, प्रेस ओके। कॉलम लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, राइट। नाउ टेबल अरे, टेबल अरे, टेबल अरे क्या आएगा? जहां से कॉमन कॉलम शुरू होता है वहां से ये शुरू करना है, देखिए, राइट, किया। देन गो टिल ओनली डेजिग्नेशन, जितना चाहिए आप वहां तक जाइए, क्योंकि उतना ही चाहिए ना, आगे वाले नंबर तो आ जाएंगे बट हमें नहीं चाहिए वो। एंड इफ यू ऑब्जर्व, क्या दिख रहा है यहाँ पे? एंड इसका इंडेक्स नंबर काउंट कीजिए एक बार, क्या आएगा इंडेक्स नंबर? एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स 1 रहता है, ये 2 है, ये। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या इंडेक्स है। यू डोंट इवन हैव टू काउंट, ना आपको कुछ
मैच फॉर्मूला फंक्शन यूज करना है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट. ओके. सर लेकिन मैं पूछ रहा था, अगर वो बहुत ज्यादा कॉलम है तो उस वहां तक हमको ड्रैग ही करना पड़ेगा क्या फिर? यस. मतलब सपोज वहाँ पे कॉलम 500-600 कॉलम है, तो उसमें अगर 480 नंबर का कॉलम है, मेरे को तो पता नहीं वो कहाँ पे है इतने डेटा के बीच, उधर ड्रैग करना पड़ेगा फिर ये? यस, अनफॉर्चुनेटली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा. नहीं तो देर आर मच मोर ऑप्शंस. देर इज अ फंक्शन कॉल्ड, एक फॉर्मूला आता है मैच करके और लुकअप करके. वो आपको फाइंड आउट करके देता है कि कौन से इंडेक्स पे ये नंबर है. बट अगेन, तो आप ये क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ हियर, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर में, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिखने के बजाय आप वो फॉर्मूला लिखोगे मैच का, so that it will find some match. okay, and then आपको ओके देगा. सर. बट उसके भी लिमिटेशंस है, उसके लिमिटेशंस है, इट विल ओनली फाइंड द फर्स्ट मैच. इन बिटवीन कुछ वो मैच हो गया तो वो आपका इंडेक्स आ जाए. ओके. सो बेटर, आपके पास 480 कॉलम है तो यू शुड यूज मोर रोबस्ट एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल पावर बीआई, सीक्वल, पाइथन. ओके. उसके लिए एक्सेल नहीं बना है 480 कॉलम के डेटा के लिए. ओके. ओके. क्लियर. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी जनरलाइज. आपको कुछ करना है, एक सैंपल क्रिएट करना है तो उसके लिए है. बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ चीज करना है तो प्रोबेबली एक्सेल इज नॉट सुटेबल फॉर योर एप्लीकेशन. बट आप बोलोगे सर नहीं मुझे एक्सेल में ही करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट. तो फिर आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करो. फिर हर एक फॉर्मूला का लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन आपको एड्रेस करना है. सच एज मैच एक फंक्शन है जो मैच करके देगा. इंडेक्स फंक्शन है जो इंडेक्स आपको फाइंड आउट करके देता है कि कौन से इंडेक्स पे क्या है. ऐसे लुकअप नाम का भी एक फंक्शन है जो आपको सिर्फ वहां का वैल्यू उठा के देगा, नॉट इंडेक्स वगैरह कुछ मैच नहीं कर सकता. ऐसे तो देर इज अ शॉर्टकट, मतलब अलग अलग फॉर्मूलाज है बहुत सारे. बट अगेन डिपेंड्स. आई वुड रिकमेंड कि कॉम्प्लेक्स डेटा है तो यूज समथिंग मोर एडवांस. ओके, डोंट रिलाई ऑन दिस. और लेट्स से एक्सेल में 480 कॉलम आपने सेव भी किया तो फाइल ओपन करने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा. दैट इज हाउ द एक्सेल इज. मतलब एक्सेल में आपने आगे जाके ये लिखा है ना यहाँ पे कितने भी 10,48,000 रोज, आपने 10 लाख रोज भर दिए एक्सेल में, तो ओपन करने के लिए फाइल डबल क्लिक करके ओपन करने के लिए आधा घंटा लगता है. ये किसी ने सर ऐसे. ओके. क्योंकि ये एक्सेल इज नॉट मेंट फॉर दैट लेवल ऑफ डेटा, और उतना हैंडल करने के लिए एक्सेल नहीं बना है. लास्ट ओके, गुड. समझ में आया. सो इफ यू सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट 3, प्रेस Yes, sir. ओके एंड डबल क्लिक. चलो, समझ में आया सबको. गुड. नाउ आई हैव Yes, वन sir. मोर क्वेश्चन फॉर यू. यस, हाँ बोलिए. ओके. सो नाउ आई हैव वन मोर चैलेंज फॉर यू. ओके. लेट्स से आपने अभी तक ये टेबल यूज किया है, टेबल 1, राइट. ये टेबल भी फिल किया है. ओके. लेट्स से यहाँ पे सैलरी की बजाय मुझे इस बार चाहिए एम्प्लॉय आईडी. ओके. सैलरी की जगह एम्प्लॉय आईडी चाहिए. नेम है मेरे पास, एम्प्लॉय आईडी चाहिए. सो हाउ विल यू डू इट? यस. वो अपन पहले वो सबसे पहले जो सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी जगह नेम का कॉलम सिलेक्ट करेंगे. ओके. वो कॉलम ओके, मतलब गुड. वो सेल सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट कॉलम यस, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी है, मुझे फिल करना है. ये वर्टिकली फिल होगा, राइट. तो select the cell, go to formulas, insert function and VLOOKUP, right. okay, press OK. हो गया. लुकअप सर वैल्यू क्या आएगा? सर लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए. यस, जब आप टेबल सिलेक्ट करते हो तब वो फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए. अभी लुकअप क्या आएगा वो बताइए. कॉमन अर्जुन क्या है? शर्मा का वो नेम टेबल 1 नेम. में. तो आई विल सिलेक्ट दिस. ओके, हो गया. सॉरी, टेबल. नेक्स्ट, टेबल अरे. टेबल अरे क्या आएगा?
इफ यू रिमेम्बर टेबल अरे का कंडीशन होता है यहां से ये टेबल अरे ऐसे शुरू होगा, ओके? क्योंकि हमेशा ये वो जो कॉमन रहता है वो एक नंबर में ही आना चाहिए। तो कॉमन क्या है? नेम। तो ये एक नंबर में आना चाहिए। नाउ अभी बताइए फिर कैसे करना है, क्या सिलेक्ट करूँ टेबल? मुझे क्या चाहिए, मैं इतना सिलेक्ट करूँ पर इतना, एम्प्लॉय बट इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी सर नहीं सर है। सर एम्प्लॉय आईडी होनी आप चाहिए बस उसमें। क्लिक कर सकते हैं क्या? हेलो, यस। अर्जुन शर्मा से नीचे ड्रैग कीजिए, फिर एम्प्लॉय आईडी के साइड घुमा के यस। ऐसा तो सिलेक्ट व्हाट कीजिए। इफ हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये देखिए ऐसे, ये भी हो सकता है ना, वो दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हमने सिलेक्ट किया। फिर इसका इंडेक्स क्या आ गया? 1। इसका क्या आएगा इंडेक्स? क्या आएगा? नहीं यस, होगा। 0, हाँ, -1 या 2? क्या आएगा? तू ठीक तो है, नहीं लेट्स आएगा। लेट्स लेट्स डू इट। ठीक है, करके देखते हैं। आपने बोला टेबल अरे इतना सिलेक्ट करना है, देखिए ऐसे, और ये पीछे हो गया, इतना सिलेक्ट किया हमने, है ना? ठीक है, अभी क्या आएगा आप बताइए क्विकली। 2, चेक कीजिए, आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 2 तो नहीं है। नहीं, ठीक है, आगे 0, वो भी नहीं आ रहा है। -1, वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है वो नहीं आएगा, फिर भी ओके करते? ठीक है, ओके हो गया। कैसे न्यू सॉल्व? टेबल, न्यू टेबल। ओके, न्यू टेबल, बट यही हमारा सोर्स टेबल है ना, आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। हेलो सर, एक्स सर लुकअप यस, एक्स लुकअप यूज करेंगे। ओके, ओके, विल कम बैक टू दैट पॉइंट। व्हाट अबाउट, यस, एक काम कर सकते, नेम कॉलम यहाँ पे लिखा है, एक एम्प्लॉय आईडी कॉपी कीजिए, कई जगह आगे पेस्ट कीजिए राइट साइड में, है ना? सर देन इट विल, सर हाँ, वही ओके, बोल रहा था, जो एम्प्लॉय ओके। आईडी का कॉलम मूव कर सकते हैं क्या इधर ऐसे? आइडियली करना है तो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यू कैन सिलेक्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट, तो ब्लैंक आ गया, फिर ये कॉपी करके ये पेस्ट कीजिए, बट ऐसा नहीं चलता। ओके, ये ऐसा इशू है, मतलब वी लुकअप वर्क होता है व्हेनेवर लुकअप वैल्यू के राइट साइड में आपको जो वैल्यू चाहिए वो होगा तो ही। इफ इट इज ऑन लेफ्ट साइड तो लुकअप वैल्यू इज नॉट एबल टू वर्क। इसीलिए देयर इज अ न्यू ऑप्शन कॉल्ड एक्स लुकअप। ओके, क्रॉस लुकअप का एक तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है विच वर्क्स, ओके, ऐसे सिचुएशन के लिए। लेट्स सी ये कैसे वर्क होता है। So what I will do is, हॉरिजेंटली वर्टिकली। yes, yes. So how it will work? Let's say employee ID है, select the formula, insert function, okay, and X lookup, okay, press OK, हो गया। X lookup सर्च किया आपने, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, press OK. Now you can see lookup value, टेबल अरे की जगह लुकअप अरे है यहाँ पे, ओके, टेबल नहीं है, एंड देन रिटर्न अरे है, अरे है, टेबल कहीं पे नहीं लिखा। तो कैसे करते? टेबल लुकअप वैल्यू क्या है इसके अंदर? व्हाट इज अ लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू कॉमन नेम, पता है ना, तो क्या कॉमन है? नेम, नेम। तो आई विल सिलेक्ट दिस, ओके। यस, देन पहले आप क्या करते थे? लुकअप टेबल सिलेक्ट करते थे जहां पे पूरा इंफॉर्मेशन है, राइट? टेबल अरे जहाँ पे यस, पूरा इंफॉर्मेशन ये सिलेक्ट करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये कॉलम सिलेक्ट करना है, जो कॉमन कॉलम है उसे ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो आई विल सिलेक्ट दिस, B3 to B12। ओके, इतना ही सिलेक्ट किया है मैंने, ओके, क्लियर। देन यस, रिटर्न, रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, इतना, ये देखिए ऐसे, ओके, A3 to A12। यस, एंड यू कैन सी द आंसर। बाय द वे ये सारे ऑप्शनल है, होप यू नो। प्रेस ओके एंड डबल क्लिक,
ना कॉलम का झंझट है ना रो का झंझट है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं है। ओके, डायरेक्टली जो कॉमन है वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए, जो रिटर्न में चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए, वो अपने आप मैचिंग कर लेगा। फॉर एग्जांपल एक्सेल विल फाइंड आउट, ये यहाँ से ऐसे 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 जो भी मैच लगाना है वो मैच लगाएगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ एच लुकअप वर्क्स। समझ में आया एवरीवन? यस, ये देखिए, राइट। नॉट ओनली दिस, कल जाके आपको वी लुकअप यूज नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने ये दिखाया था, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी चाहिए आपको। ओके, लेट्स से आपको सैलरी चाहिए, तो ये तो नॉर्मल वी लुकअप से भी होता है, राइट? आपने देखा है यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, बट आई कैन यूज, ओके, आई कैन यूज एक्स लुकअप एज वेल। ओके, वी लुकअप की जगह मैं एक्स लुकअप यूज कर सकता हूँ। कैसे? फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, राइट? प्रेस ओके, हो गया। व्हाट इज लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी E101, राइट? टेबल अरे क्या है? सॉरी, लुकअप अरे इज एम्प्लॉय आईडी, राइट? ये देखिए, राइट, इतना ही सिलेक्ट होगा। रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में क्या सैलरी। चाहिए? सैलरी, तो इतना सिलेक्ट कीजिए, ऐसा। यस, ओके, डबल क्लिक, ओके, let me increase the font, right? So this is how you can get it. Clear? तो x lookup की जगह पे भी आप, सॉरी, v lookup की जगह पे भी आप x lookup यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी मच सिंपलर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. सो लेट्स से वन मोर एग्जांपल, आपको अभी चाहिए डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन चाहिए। सो व्हाट यू जनरली डू इज, क्या करते हो आप लोग? वी लुकअप, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, एंड वर्टिकली भी फिल करना है, राइट? यू यूज वी लुकअप, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज अ एक्स लुकअप एज। तो कैसे करते हैं? सेलेक्ट द सेल, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, राइट? प्रेस ओके, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। लुकअप अरे कॉलम, ये यहाँ का, राइट? मतलब सोर्स में जो है वो कॉलम, रिटर्न अरे सोर्स का सेल, सॉरी डेजिग्नेशन चाहिए था, सॉरी, तो डेजिग्नेशन का कॉलम, ये देखिए ऐसे। ओके, बाय द वे ये ऑप्शनल पैरामीटर है, सच एज, ये देखिए रेंज लुकअप जैसा ही ये सर्च मोड रहता है, ट्रू एंड फॉल्स आप कर सकते हो। मैच नॉट फाउंड, मतलब मैच नहीं मिला, आप कुछ ढूंढ रहे हो वो नहीं मिला, तो क्या चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, दैट्स द ऑप्शन। प्रेस ओके, डबल क्लिक, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप भी वर्क हो सकता है। क्लियर? एंड सिमिलरली लेट्स से आपको एच लुकअप, आपने कुछ फॉर्मूलाज सॉल्व किया है यूजिंग एच लुकअप, राइट? ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल 2 है, एम्प्लॉय आईडी है, आपको सैलरी चाहिए यहाँ, बट योर सैलरी इज इन दिस, ऐसे फॉर्म में आपका है सैलरी, राइट? सो नाउ आइडियली हम क्या यूज करते हैं? एच लुकअप, राइट? क्योंकि डेटा हमें ऐसा फिल करना है हॉरिजॉन्टली, एंड दिस इज अ एच लुकअप एग्जांपल, ओके? बट आई कैन यूज एक्स लुकअप एज वेल, एच लुकअप की जगह में एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। कैसे? क्लिक द सेल, select formulas, insert function, x lookup, press OK, हो गया। What is lookup value? Lookup value is employee ID, ये देखिए E101 यहाँ पे। Then lookup array, क्या होगा lookup array? एम्प्लॉय नॉट टेबल, पहले हम क्या करते थे? टेबल सिलेक्ट करते थे, बट एक्स लुकअप में क्या करना है? सिर्फ रो सिलेक्ट कर दीजिए ऐसे, ये देखिए,
दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ पे, Yes. सिर्फ रो सिलेक्ट करना है। ओके, देन रिटर्न में क्या आएगा? व्हाट इज द रिटर्न? Salary. रिटर्न में आएगा सैलरी का रो। ओके, तो सैलरी एंड इसका रो देखिए, दिख रहा है। Yes. देन प्रेस ओके, देखिए आपको आंसर आ रहा है। क्लिक, ड्रैग, so this is how you can get it. Clear? समझ में आ रहा है? So you can use XLOOKUP. Similarly, I can show you one more example. ये देखिए डेजिग्नेशन। चलो क्विकली बताइए डेजिग्नेशन का कैसे आएगा। आइडियली मतलब नॉर्मल आप क्या यूज करोगे? XLOOKUP. XLOOKUP. ओके, आई नो XLOOKUP इज वेरी सिंपल, तो आइडियली आप XLOOKUP यूज करोगे, बट लेट्स से आपके इसमें XLOOKUP नहीं है तो HLOOKUP, राइट? ये देखिए ऐसे वैल्यू फिल करना है आपको। Yes. तो आइडियली आप Employee ID. यस, बट आपको XLOOKUP यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन XLOOKUP, HLOOKUP value. XLOOKUP यूज करना हम देख रहे हैं। ओके, सो लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, राइट? देन लुकअप अरे क्या आएगा? Employee ID row. रो, राइट? एम्प्लॉय आईडी का रो। देन रिटर्न में क्या आएगा? Designation. Designation. डेजिग्नेशन का रो आएगा, राइट? क्लियर? प्रेस ओके, this is how you can do it, and then drag. है सिंपल, राइट? वेरी Yes. सिंपल। आपको वहां पे काउंट नहीं करना है, ना कि डिस्टेंस करना है, 200 कॉलम 400 कॉलम काउंट करना है, नथिंग। जो चाहिए वो सिर्फ सिलेक्ट कीजिए। ओके, बहुत Advanced. सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट इसका मेजर इशू ये है, दिस इज ओनली अवेलेबल इन लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल 2021 के आगे वाले वर्जन में अवेलेबल है, पुराने वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। सो इफ यू आर यूजिंग, somebody was using 19, right? It is not there. आप सर्च कर सकते हैं, फॉर्मूलाज में जाके फंक्शन में जाके सर्च कीजिए XLOOKUP। ओके, इफ यू सर्च आपको ये XLOOKUP नहीं दिखेगा ओल्डर वर्जन में, राइट? क्योंकि ये सिर्फ लेटेस्ट है, इतना सिंपल है, इसीलिए ये लेटेस्ट वर्जन में है ना। और इन सब करते बैठो VLOOKUP, HLOOKUP, काउंट करना है, राइट? पैसे कमाना है ना माइक्रोसॉफ्ट को भी, तो जो आसान है दैट यू नीड टू पे, लेटेस्ट वर्जन खरीदना पड़ेगा हर एक 2-3 साल के बीच, है ना। पुराना वर्जन भले ही चलता है वो, बट आप यूज नहीं कर पाओगे उसमें। दिस इज हाउ अनफॉर्चुनेटली बिजनेस वर्क्स, है ना। फोर्सफुली दे विल मेक यू टू परचेज समथिंग न्यू। Yes, clear. So this is the limitation. That's it. इसका पैसा देना पड़ेगा आपको और लेटेस्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं चाहिए। Yes. Okay. Good. So clear everyone, समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. सीखा है, क्या सीखा है? Just to revise, we started with lookup फंक्शन के साथ हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट और गोल और ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना। ओके, मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना। फिर उसमें हमने 3 ऑप्शंस देखे, VLOOKUP, HLOOKUP एंड XLOOKUP। VLOOKUP फॉर वर्टिकल, राइट, वर्टिकली फिल करना है तो, HLOOKUP फॉर हॉरिजॉन्टल, X फॉर क्रॉस मतलब इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट द रिलेशन। VLOOKUP के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हमने देखे। वन इज वेरी सिंपल, आप लुकअप वैल्यू दे दीजिए, टेबल अरे दे दीजिए एंड
column index number. Clear? So if you give these three values, if you give these three values, आपका आंसर आ जाएगा. फिर उसके बाद लेट्स से आपने ये तीनों वैल्यूज दिए हैं बट फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, देन देयर इज अ फोर्थ ऑप्शन, राइट? रेंज लुकअप, राइट? ऐसे ही था. तो ऑप्शनल पैरामीटर है, ट्रू एंड फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, इसके ऊपर वो काम करता है, वो आप यूज कर सकते हैं. ओके, इफ यू आर नॉट यूजिंग प्लीज अनम्यूट योर माइक क्योंकि इको आता है बहुत बार. ओके, सो क्लियर एवरीवन? इफ मतलब Yes, sir. VLOOKUP उसके अलग अलग वर्जन्स हो गया. वो वर्जन्स के बाद आपने एक तो सिंपल ऑप्शनल वर्जन देखा, फिर उसके बाद लॉजिकल VLOOKUP देखा जहाँ पे विदाउट मैचिंग वो लॉजिकली फाइंड आउट करके देता है अक्रॉस द शीट, दो शीट के बीच, अक्रॉस द फाइल, दो फाइल के बीच. क्लियर? फिर इसके बाद आपने HLOOKUP देखा. H इज अ हॉरिजॉन्टल लुकअप विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल और सेम आपने जो सीखा है उसी लॉजिक के ऊपर. लुकअप वैल्यू देना है, अरेंज लुकअप सॉरी लुकअप वैल्यू एंड टेबल अरे देना है, बट इस बार रो कॉलम सॉरी रो इंडेक्स नंबर देना है आप, राइट? डिस्टेंस बिटवीन टू रोज, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है एच लुकअप. क्लियर? अंडरस्टूड? फिर उसके भी अलग अलग वही वर्जन्स, रेंज लुकअप कब यूज करना है, ऑप्शनल पैरामीटर, अक्रॉस द फाइल, अक्रॉस द शीट, वो सब कुछ आप यूज कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन इज XLOOKUP. XLOOKUP कब यूज करना है? When you want to fetch the value which is on the left side of common column. कॉमन कॉलम के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहेगा उसे फेच करने के लिए आप XLOOKUP यूज कर सकते हो. आइडियली आप सब जगह यूज कर सकते हो, बट जस्ट टू से लिमिटेशन क्या है, मतलब VLOOKUP कहाँ पे वर्क नहीं होगा तो ये बता सकते हो कि यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ऐसे. ओके, क्लियर? तो XLOOKUP आप जब यूज करोगे दैट टाइम अगेन आपको लुकअप वैल्यू देना है, मतलब कॉमन वैल्यू देना है. एंड इस बार पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बजाय सिर्फ जो कॉमन कॉलम है उसे ही सिलेक्ट कर दीजिए, जो रिक्वायर्ड मतलब आपको आंसर चाहिए वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना है. दैट्स इट, नथिंग. नो डिस्टेंस काउंट करना है कितना है, 1 2 3 ये वो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. क्लियर? सेम केस विथ HLOOKUP का भी XLOOKUP वेरिएशन करता है. XLOOKUP में आप इंस्टेड ऑफ कॉलम आप रो सिलेक्ट कीजिए, है ना? तो वो क्या करता है, क्रॉस में भी काम कर जाता है. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. So this is Sir. how you can use multiple lookup options. Clear? So इसका यूज होता है आगे जाके आप कंबाइन करके कुछ एनालिसिस कर सके. गुड. नाउ डेफिनेटली असाइनमेंट इज आप फिल कर दीजिए पूरा टेबल. फॉर एग्जांपल ये जो VLOOKUP का टेबल है सेम यूजिंग XLOOKUP फिल करना है. ओके, एंड HLOOKUP का जो टेबल है डेफिनेटली HLOOKUP करके यूज कीजिए, देन XLOOKUP करके फिल कीजिए. ओके, सिमिलरली XLOOKUP में भी कुछ एग्जांपल्स है, ये अलग अलग एग्जांपल्स ये आप फिल कर सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. ओके, सो व्हाट यू कैन डू नाउ इज सेम इसका एक जो ओरिजिनल फाइल है आपका, आपने गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर देखा होगा, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक डेटा सेट करके फाइल है, डेटा सॉरी फोल्डर है. उस डेटा सेट में डेटा सेट मिनी या स्टोर्स मिनी करके एक फाइल है. उस फाइल के अंदर 3 शीट है, ऑर्डर, रिटर्न एंड पीपल करके. वो तीनों शीट आप कंबाइन करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज योर असाइनमेंट के होमवर्क. तो उसमें और चैलेंजेस आपको आ सकते हैं. वन इज ऑब्वियसली वो काउंटिंग का चैलेंज आएगा. ओके, सो दैट यू नीड टू टेक केयर. क्लियर? बट इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. समझ में आया? ऑनलाइन अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ओके, गुड, एक्सलेंट. ओके, चलो सन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. होपफुली आज कुछ इशू नहीं आया है, राइट? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑडियो वीडियो, है ना? गुड.
ओके, विल कनेक्ट टुमारो एज वेल इफ यू डोंट माइंड, है ना? थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। कल हम सेम टाइम 10:30 बजे, 10 की बजाय 10:30 बजे कनेक्ट करते हैं। ओके, चलेगा? गुड, ठीक है, एक्सलेंट। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। इफ देयर इज अ चेंज आई विल अपडेट यू इन द ग्रुप। ओके, व्हाट्सएप में आपको मैं एग्जैक्ट टाइम आपको अपडेट कर देता हूँ। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। चलो, बाय।